Welcome to 100 News. This is Tulika Pandey. Today we have former Indian wicketkeeper Vijay Dahiya with us, and he is also a coach for the IPL, assistant coach, and now he is leading Delhi Six. So, sir, first of all, tell us how was your experience? कैसा रहा पूरा अनुभव दिल्ली सिक्स को कोच करके? मैं तो टूर्नामेंट के बारे में पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि टूर्नामेंट बहुत ही एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है यंगस्टर्स के लिए कि इस तरीके का टूर्नामेंट आपको अपनी स्टेट में खेलने को मिल रहा है जिसका स्तर बहुत ही बेहतरीन है। मेरे लिए मैं अपने आप को हमेशा लकी मानता हूँ जब भी मुझे कहीं पे भी काम करने का मौका मिलता है, एंड आई एम वेरी लकी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जहाँ तक टीम के बारे में बात करी जाए तो कुछ बहुत ही शानदार इस तरीके के क्रिकेटर्स मुझे देखने को मिले हैं जिनके बारे में मैंने सुना था, लेकिन जब मैंने टाइम स्पेंड करा है तो और पास से उनको देखा है। मैं सिर्फ अपनी टीम के बारे में नहीं, इस पूरे टूर्नामेंट के बारे में भी कहना चाहूँगा कि जो टैलेंट यहाँ पे देखने को मिला है वो बहुत ही बेहतरीन है। So you have coached many people across the globe, and now you're coaching these youngsters. What kind of potential do you see in all these players? Fantastic potential, like I just mentioned earlier as well. But you know, me being around, lucky enough to work with the best in the business, I always believe potential is one thing, but converting that potential into performance is a very important thing. And I think this is where we all try and work when you're in a support staff to create a kind of environment where an individual player can give his best performance. Some of them have given us the glimpse of what they are capable of, but this game demands more consistency, and I hope this experience will help them to get that consistency going on when they play more cricket once the season starts. How glad do you feel seeing your players, your trained players, playing so well and reaching to the semi-finals? I think overall, I feel lucky. It's not about me; it's about them. You know, they are the one who's going out there in the middle and performing, absorbing everything and learning and just taking it to the next level. Very happy to see. One department I still feel there's a lot to be done is the mental side. They need to be completely in it to win it. The talent is top class, but I think they need to be more disciplined in coming games to get the better results. Among all the players, whom do you see wearing blue jersey? I think it'll be unfair for me to point out one or two, and not only from my team, the talent that I've seen in other teams as well is astonishing. I mean, like, you know, very, very thrilled to see that kind of talent, and that's this opportunity, especially for them to showcase. There are few, but that journey is long and far. At the moment, they should be concentrating on what they have in hand. And with the larger impact of social media, we have seen that, you know, when players are playing, lots of other people who have their eyes, and they get selected while playing only for a small tournament like this. So, do you think, or have you witnessed any such incident where you have been reached out for like someone playing for IPL or any other matches? Well, there are few interest has been shown by some of the talent scout who wants to know more. It's not only about numbers that you see out there. You want to know more about a player. You want to know more about their temperament, their fitness. So yeah, a couple of people have asked me, what do you think of a certain guy? But I still feel there's a long way to go. People absolutely inquire about a lot of people, but as far as the big stage, that stage that you're talking about, IPL is concerned, I think they have to do a lot to get there. Okay. And what's your plan for the finals and semi-finals? I think one thing at a time. South Delhi is a very good side. It'll be very important for us to counter their batting because their strength has been their batting, and that revolves around two players. Ayush Badoni has been in very good form. Priyansh Arya has been playing really good cricket. So, you know, we'll be focusing on those two, how to get them out early and put pressure on a strong South Delhi side. You just highlighted about the fitness, and we know Virat, and there are other players as well, you know, who is setting a good goal marks for the fitness. What do you think, how important is it for the young players to dedicate certain time for their fitness? Oh, absolutely. This game demands fitness and a top level fitness, and I think a lot of people talk about mental strength. I say it's absolutely correlated with your physical strength as well. The more physical strong you becomes, the more mental strong you becomes automatically, because whatever you think, your body can do it for you. So in that sense, it's a very important aspect as far as this game is concerned. It's so demanding right now. You got to be at the top as far as your fitness is concerned. Sure. Thank you so much for talking with 100 News. It was a pleasure having you here. Most welcome. Thank you so much. प्लेयर्स को काम रहना ज़रूरी है, हर चीज़ मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। तो अब जब ये जर्नी काफ़ी आगे तक आ चुकी है, तो क्या कहेंगे आप प्लेयर्स के बारे में? कैसा रिस्पांस रहा प्लेयर्स का? प्लेयर्स ने
इस लीग से क्या सीखा, आपको क्या लगता है? एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी। जब आप इस तरीके की लीग के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ये लगता है, मेरा कभी भी शब्द डिस्ट्रैक्ट का नहीं था। अच्छा, तो और हाँ, मेरा शब्द यही था कि जब आप खेलते हैं, सेम नाम होते हैं, हम सेम प्लेयरों के साथ खेलते हैं, 4 लोग भी ग्राउंड में आपको देखने के होते हैं, नाइट मैच इस तरीके का नहीं होता है, इतनी आई बॉल्स नहीं होती हैं, इतने सबको पता है इस टूर्नामेंट में जितने भी बच्चे खेल रहे हैं कि टैलेंट स्काउट आए हुए हैं, लाइव मैच आपका टीवी पे जा रहा है, क्या आप अपने टैलेंट को एक लेवल और ऊपर ले जा सकते हैं? सिर्फ वही चैलेंज होता है जब आप ऐसी टीम के साथ जुड़ते हैं। और मुझे लगता है कि मैं अपनी टीम के बारे में भी बात करूँगा, लेकिन अगर बड़ी पिक्चर में देखता हूँ, मैं खुद दिल्ली से हूँ, तो मुझे इस चीज़ का भी बहुत सेटिस्फैक्शन है कि इस टूर्नामेंट से जो डीडीसी अचीव करना चाहती थी, स्पेशली वाइट बॉल क्रिकेट के लिए, वो बहुत सारे ऑप्शंस उनके पास होंगे। मैं पर्सनली इतने टाइम से सबके साथ हूँ, होटल में टाइम स्पेंड करता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ सबसे, तो मुझे लगता है कि हर किसी के माइंडसेट में कम से कम जो इस लेवल पे नहीं खेला है, कम से कम 15 या 20% का एक चेंज आपको नज़र आता है कि आप तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं। और जब आप कंपटीशन की बात करते हैं, स्पोर्ट्स की बात करते हैं, तो स्किल के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका माइंडसेट है। मुझे लगता है कि लड़कों ने बहुत अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द कंपटीशन, अकॉर्डिंग व्हाट इज़ ऑन डिस्प्ले, बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट किया है, बहुत अच्छी तरीके से ये कोशिश करी है कि उस प्रेशर को कैसे सोक इन किया जाए और इन सिचुएशन के अंदर कैसे परफॉर्म करा जाए। तो इट्स आई थिंक क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू देम, क्योंकि आप इन कंडीशंस में पहले नहीं खेले हैं। उस हिसाब से मुझे लगता है कि लड़कों ने बहुत अच्छा कोप किया है। तो मेरा एक क्वेश्चन ललित से भी है। ललित, जब आप लोग आईपीएल खेलते हो तो हम मैच के बाद तस्वीरें जो देखते हैं उसमें आप लोग जाते हो, कभी एमएस से बात करते हो, विराट से बात करते हो, रोहित से बात करते हो। यहाँ पर हमने कई बार देखी है कि जो युवा बच्चे हैं वो आपसे आके बात कर रहे हैं, शिवम से बात कर रहे हैं, ऋषभ खेले उनसे बात की। तो थोड़ा सा बताइए इस दौरान बातचीत क्या होती है और जो यंग बच्चे होते हैं उनके क्या सवाल रहते हैं आप लोगों के लिए? सवाल यही रहते हैं जैसे कि एक्सपीरियंस पूछते हैं कि आप लोग उस सिचुएशन में क्या करते हैं। तो जैसे हम लोग जैसे आईपीएल में जाकर अपने सीनियर से बात करते हैं कि क्योंकि उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी टाइम हो गया खेलते तो एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, तो बस एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि कैसे उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते थे ज़्यादा सक्सेसफुल होने के लिए, और बाकी फीलिंग पूछते हैं कि कैसा फील कर रहे हो। मैं ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मैच खत्म होने के बाद ललित मनोज के पास गए थे, मनोज प्रभाकर के पास, ये बात करने के लिए। देखिए, सीखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये कहें कि युवा खिलाड़ी को, जब तक आप क्रिकेट खेलते रहते हैं तब तक आप सीखते रहते हैं। जिस दिन आप सीखना छोड़ देते हैं उसी दिन आप नीचे आना शुरू कर देते हैं। तो सिर्फ ये नहीं है, और ज़्यादातर जो बच्चों के बारे में बात करें ना, उनका सिर्फ एक ही सवाल होता है कि इस लेवल पे हम कैसे करें। आप आईपीएल का आपने नाम लिया, आप इन सब स्टेट की जो लीग है आप उनको एक मिनिएचर बोल सकते हैं उसी तरफ जाने के लिए। तो कोशिश उनकी यही रहती है कि किस तरीके से अब हमने स्टेज पे हैं तो क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं ललित की भी तारीफ करूँगा किस तरीके से वहाँ खेलते हुए मनोज के पास गए और बैटिंग के बारे में बात करने गए। और ऐसे बहुत लड़के थे, बिना नाम लिए मैं बोलना चाहूँगा कि हर टीम में किसी ना किसी से उन्होंने बात करने की कोशिश की। और यही हार्टनिंग साइन है जो मैं बड़ी तस्वीर के बारे में आपको बोल रहा हूँ ना, कि टूर्नामेंट से आपने सिर्फ रन नहीं बनाए हैं, विकेटें नहीं ली हैं, कैचें नहीं पकड़ी हैं, मेंटली भी आपने अपने आप को ग्रो करने की कोशिश की है। विजय जी, 4-5 मैच हारने के बाद आप सेमीफाइनल में आ गए हैं, उसके लिए बधाई, और फाइनल के लिए भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। मेरा सवाल ये है कि साउथ दिल्ली जैसी मजबूत टीम से आपका मैच है, क्या तैयारी रहती है आपको? हम 5 मैच जीतने के बाद यहाँ पे आए हैं। जी जी बिल्कुल, वो आपने बोल दिया पहले, तो ये बता दूँ और हमने क्या किया है। 5 मैच जीतने के बाद याद दिला रहा हूँ, बहुत मजबूत टीम है, और आपकी तैयारी क्या है? इस कंपटीशन के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर अगर आप सिर्फ रेपुटेशन की बात करेंगे और जो उन्होंने किया है, बिल्कुल आपको क्रेडिट वहाँ देना पड़ेगा जहाँ ड्यू है, और ये उन्होंने करके भी दिखाया। और उनके जो 2 खिलाड़ी हैं, आप अगर खेल की तरफ देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा प्लान ये रहेगा कि जो उनकी टीम की जो सबसे बड़ी ताकत रही है वो 2 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द रही है। और जिस दिन उनके रन नहीं मिले उस दिन दूसरी टीमों ने उनके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रेशर डालने में कामयाब रही। तो हमारी भी कोशिश ये रहेगी, और सबसे अहम कोशिश ये रहेगी कि हमारी जो फील्डिंग का स्तर है, जब हम पिछली बार उनके साथ खेले थे तो वो उतना अच्छा नहीं था। सबसे बड़ी तैयारी इसी चीज़ की रहेगी। आप आज से पहले 1000 कैच पकड़ सकते हैं, लेकिन उस प्रेशर के अंदर क्या आप उस दिन वो कैच पकड़ पाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, जिस तरीके की क्रिकेट उन्होंने खेली है वो बहुत मजबूत टीम है, और ये हम सबको मालूम है। लेकिन ऑन अ गिवन डे मुझे लगता है कि जिस तरीके की क्रिकेट हमने भी खेली है, हमारी टीम ने खेली है, वो केपेबल है ऑन अ गिवन डे किसी को भी चैलेंज करके और किसी भी सिचुएशन से मैच जीतने।
सेमीफाइनल की मैच के लिए कोई टीम में बदलाव भी है? आई थिंक जिस तरीके का मौसम चल रहा है बहुत मुश्किल है ये कह पाना कि कितना गेम होगा। अगर छोटा गेम होगा तो ज़रूर टीम में कुछ बदलाव करेंगे। ये डिपेंड करता है कि उस दिन कंडीशंस किस तरीके के और गेम सिनेरियो क्या मिलने वाला है। पूरे 20 ओवर का मैच होगा या कम होगा, वो सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए टीम बनाई जाएगी। थैंक यू। हाय विजय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस पूरी टीम को, आप लोग सेमीफाइनल पहुंच गए हैं। Thank तो मेरा क्वेश्चन पहला आपसे ये है कि क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी ललित का, क्या प्रेशर हटाने का उनके ऊपर से, उनसे जो आपने कैप्टनसी एक चेंज हुआ है लीग के बीच में, तो वाज इट टू रिमूव द प्रेशर ऑफ ललित शोल्डर? एंड अगला क्वेश्चन फॉलोअप जो है वो अर्पित से है। अर्पित, कैसा एक जो टर्न अराउंड हुआ है लीग के बीच में, आप आए यंगस्टर, उसके बाद हमने रन करे, फिर आपको कैप्टनसी मिली, तो वो कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है, तो वो आप प्लीज शेयर करें। आज स्टार्ट विद ललित। ये बिल्कुल ठीक है, जब हमने ये टीम बनाई थी ऑक्शन और जैसे ही हमने ललित को पिक किया था, ललित इज़ आ मेन प्लेयर और हमने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी या पूरी टीम उनके इर्द गिर्द ही बनाई थी। और ये भी बिल्कुल ठीक है कि शुरू में हमें लग रहा था कि हम किस तरीके से ललित को एज अ प्लेयर वापस पा सकते हैं, एज अ कैप्टन नहीं। मुझे लगता है कि एज अ कैप्टन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, लेकिन उससे भी बड़ा रोल ये होता है कि आप किस रूप में उस टीम के अंदर खेल रहे हैं। और मुझे लगता है इस पूरी लीग में अगर मैं नज़र दौड़ाता हूँ तो ललित उन कुछ खिलाड़ियों में से हैं जिनके पास वो एक्सपीरियंस है, जिनके पास वो एबिलिटी है और जिनके पास वो काबिलियत है कि वो कहीं से भी आपको मैच जिता सकते हैं। तो जी हाँ, वो बिल्कुल इस तरीके का मूव था और ललित को बिल्कुल साथ रखकर ये मूव लिया गया था। उनसे बात करके किया गया था कि हम आपको एक प्लेयर के रूप में ज़्यादा चाहते हैं, एक कैप्टन की बजाय। तो वो मूव उसको ही था और उसके बाद जो कुछ मैचेस आपको देखने को मिले होंगे उसमें मुझे लगता है कि ललित और ज़्यादा फ्री खेलते हुए नजर आए और वो रिस्पेक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि लीडर होने के लिए आपको टाइटल की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ललित टॉस करने नहीं जा रहा तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस टीम का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर नहीं है या इस टीम का एक लीडर नहीं है। तो उसकी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी पहले दिन थी टूर्नामेंट की, और जब तक हम इस टूर्नामेंट में बने रहेंगे तब तक उसकी उतनी इंपॉर्टेंस रहेगी इस टीम के। ये हमने देखा है ये चीज़ फील्ड पे जब भी होते हैं तो ललित ही जो है पूरा फील्डिंग इधर से उधर, फील्डर को भेजना, बात करना बॉलर से, काफ़ी वो इन सिंक अर्पित के साथ रहता है कि कभी भी उनकी ये कोशिश नहीं रही है कि वो अर्पित को ओवरशैडो करने की कोशिश करें। अर्पित और ललित का बहुत अच्छा एक रिलेशन है, मैच के अलावा भी दोनों आपस में बहुत बात करते हैं, खेल को समझने की कोशिश करते हैं। तो अर्पित उस डिसीजन में बिल्कुल ललित के साथ इन्वॉल्व रहता है और वो एक आउट ऑफ रिस्पेक्ट है कि जिस तरीके से ललित इन्वॉल्व रहता है गेम में, तो उनकी भी कोशिश रहती है कि भैया जो कर रहे हैं वो उसमें उसके साथ रहता है। थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है कि ललित भैया को प्रेशर हटाना था, वो अभी भी हमारे मेन प्लेयर हैं और हमें उन पे पूरा बिलीव है कि वो जो करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। आपका एक्सपीरियंस एज अ कैप्टन, एज अ प्लेयर, कीपीएल एज अ फॉर्मेट, आप मतलब एज अ स्टेपिंग स्टोन देख रहे हैं इसको आगे फर्दर अपना करियर को जो है एक ग्राफ ऊपर ले जाने के लिए? हाँ, काफ़ी अच्छा एक्सपोजर है, अगर अच्छा करेंगे तो सबकी नज़र में रहेंगे। और इतना कुछ नहीं है कि मतलब नॉर्मल खेलना, इतना कुछ प्रेशर नहीं लेना और यही है कि बस अच्छा करना है और टीम के लिए जो अच्छा कर सकते हैं वो करना है। कोई टिप्स विजय सर की तरफ से, कोई गुरु मंत्र? ऐसा कुछ गुरु मंत्र नहीं है, वो सबको बैक करते हैं, पूरी टीम को बोलते हैं कि अपना नेचुरल गेम खेलो और बस एक प्लान पे स्टिक रहो। ऐसी नॉर्मल बातें होती है, इतनी कुछ बातें नहीं होती। आयुष, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? अगर इस पूरी हम लीग की बात करें, आप पर्पल कैप होल्डर हैं और हम इंडिया में तो हमेशा तेज़ गेंदबाज जितने मिले उतना अच्छा रहता है, तो आप अपना जर्नी के बारे में बताइए थोड़ा सा। मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही DPL में। पहले थोड़े अप्स एंड डाउन्स थे, बट उसके बाद थोड़ा अपने आप पे बिलीव करा और विजय सर ने बहुत ज़्यादा बैक करा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंडसेट था, इसलिए पर्पल कैप होल्डर। शिवम, आप थोड़ा सा अगर शेयर करें, आप तो देखिए IPL भी खेले हुए हैं, दिल्ली से इतने साल से आप खेल रहे हैं, तो जब आप इन सब के साथ खेले उस एक्सपीरियंस के बारे में। देखो, एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा, क्योंकि हम लड़के साथ में खेलते हैं दिल्ली में, तो जानते हैं एक दूसरे को और यहाँ पे आके बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई है, एक दूसरे को पहचाना है और अच्छे से, क्योंकि एज ए प्लेयर हम लोग दूसरे को जानते थे, बट एक दूसरे को जानना यहाँ पे बहुत अच्छा रहा और साथ में खेलना। और इस टीम के साथ मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतने अच्छे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहा हूँ। विजय सर हमारे कोच हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, तो मुझे नहीं लगता इनसे जो सीख रहे हैं वो लड़के और कहीं सीख पाते। जो सर से इस टाइम सीख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है लड़कों के लिए, यंगस्टर्स हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। विजय सर, हमेशा कहा जाता है कि जितने इतने सालों से हम लीग्स देख रहे हैं उसमें फ्रेंचाइजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी उन्होंने पीछे कहा कि आप 5 मैच हार गए, फिर
तो ये चीज़ एक थोड़ा मुझे बताइए कि जब हार मिली जीत मिली, फ्रेंचाइजी का रोल उसमें कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली फ्रेंचाइजी के वो लोग जिनका शायद क्रिकेटिंग बैकग्राउंड उतना नहीं है जी। तो जब निर्णय आपके फेवर में आ जाए तब थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होना बहुत लाजमी हो जाता है किसी के लिए। एक ये पहली लीग है, कॉम्पिटिटिव लीग है, और जिन भी लोगों ने ये टीमें खरीदी है दिल्ली में, उनकी अपनी खुद की एक रेपुटेशन है जी। वो चीज़ भी आपको ज़रूर अपने जहन में रखनी पड़ती है। लेकिन जहाँ तक आकाश की मैं बात करूँ, मुझे नहीं लगता कि ऑक्शन के दिन से लेकर आज तक कभी भी उन्होंने मुझसे पूछा हो कि प्लेइंग किस तरीके से, क्या आपका स्ट्रैटेजी है। बस उनका यही रहता है कि आप अपने लड़कों से सिर्फ बेस्ट लेने की कोशिश करें, लड़के सब ठीक हैं, जो हमने पिक किया है वही बेस्ट है। तो वो बैकग्राउंड हमेशा उन्होंने क्रिएट करके वहाँ देने की कोशिश करी। और कोई भी क्रिकेटिंग एज फार एज रिजल्ट्स आर कंसर्न कोई प्रेशर नहीं आया। जब 1-2 मैचेस में हमने अच्छा नहीं किया, उसकी वजह थी हमारी फील्डिंग, तब उनका ये मानना था कि आप सिर्फ लड़कों से ये बात करके रखें कि जब उतने ग्राउंड में तो अपना 100% थे। और आई थिंक ये लाजमी है उनका हमसे ये एक्सपेक्टेशन करना, जब एक टीम उनकी खेलने के लिए उतरी, कि उनका जो एफर्ट होना चाहिए वो 100% होना चाहिए। उन्हें भी ये पता है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका जो एफर्ट है वो 100% होना चाहिए। और आप लोग सब शीशगंज गुरुद्वारे भी गए, तो कह सकते हैं कि एक और मतलब मोटिवेशन फैक्टर है कि सेमीफाइनल से पहले, और उस दिन मतलब कोइंसिडेंटली बहुत अच्छा दिन था, गुरु तेग बहादुर जी का शायद जन्मदिन था उस दिन। तो अगर कुछ आप लोग सब कुछ बताना चाहें। मेरे लिए तो हर दिन बहुत अच्छा दिन है, वो एक एक्स्ट्रा अच्छा दिन हो गया, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं, यहाँ पर सब कुछ करते हैं, एवरी डे इज़ अ ब्लेसिंग। मैं कोशिश यही करता हूँ कि इस तरीके की बात हर किसी से करने की मंशा भी रहती है और कोशिश भी रहती है जो सुनना चाहे उसके लिए। क्योंकि टीचर्स डे पे मैं सबको विश करना चाहता था हैप्पी टीचर्स डे, क्योंकि इस जनरेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने गुरुद्वारे के बारे में बात करी, मेरे लिए तो इस तरीके की जगहों पे जाना हमेशा रहता है। आप इन सब चीज़ों को बहुत पर्सनल रखते हैं, बहुत सारे लोग करते भी होंगे, आप कोशिश करते हैं जितना कम से कम शेयर करें, लेकिन ऐसे टीम वहाँ पर जाना आई थिंक वो और कोशिश करता है आपकी एक बॉन्डिंग क्रिएट करने की। ये मेरी फीलिंग है। बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है कि जिनको बोलना चाहिए। हाँ, सबसे पूछो, जलेबी भी खाई सब लोगों ने उस दिन? नहीं, कड़ा प्रसाद भी खाया। कड़ा प्रसाद भी खाया। वो बैठा बुग्गा वहाँ पे, उसने 3-4 बार खाया, मांग के खाया उसने, बल्कि मुझे बढ़िया लग रहा। तो हाँ भैया, अगर बताओ कैसा टेस्ट था? उतनी पूछ जा रहा है, ये तुम्हें बता दो। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था और सबके साथ जाके काफ़ी अच्छा लगा कि अपने टीममेट्स के साथ कि सब यही पहले दिन से ही बात कर रहे हैं कि हम सब एक फैमिली की तरह हैं, तो काफ़ी अच्छा था। तो ये भी होगा कि जैसे स्कूल के फ्रेंड्स होंगे आप लोगों के, या कॉलेज के फ्रेंड्स होंगे, या फैमिली में रिलेटिव्स होंगे, तो फोटो वगैरह आप ले रहे हैं, उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों के साथ भी? जब अभी तो काम मिले ही नहीं है। अच्छा, बट एक फैक्टर जो पुरानी दिल्ली की टीम के साथ रहा है सबसे मेजर, क्राउड बैकिंग, जो सपोर्ट मिला है, जो फैंस आते हैं। मेजॉरिटी मैचेस जो हमने देखे हैं डीपीएल में, उसमें पुरानी दिल्ली 6 जब खेल रही होती है तो एक क्राउड सपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा रहता है। तो ललित भाई, आपने देखा ही, आप एक तरह से वेटरन हो गया दिल्ली क्रिकेट के, तो आप बता सकते हो क्राउड सपोर्ट कितना ज़रूरी है। आईपीएल आपने खूब खेली है, आपको पता है क्राउड का बैकिंग कितना इंपॉर्टेंट रहता है, तो उस फैक्टर के बारे में। वेटरन के लिए मैं बहुत छोटा हूँ, मैं 27। और जैसे भैया बता रहे हैं कि जैसे नई एक्सपीरियंस कोई चीज़ की है तो वो प्रिंस ने की है। जैसे पहले इसको गाँव में बहुत कम लोग जानते थे, अभी आज में मेरे ख्याल से इसके बाद 100 फ़ोन आ चुके हैं पास, मेरे को भी चाहिए, और मतलब भाई लोग आए दिए फिर वो तो तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक हमारे लोग हमें सपोर्ट करने ग्राउंड में आते हैं हर मैच में, चाहे उन्हें पास से कहीं से भी अरेंज करना पड़े। तो ये अच्छी फीलिंग है कि जब हमारे जो जानने वाले हैं वो लोग, जैसे रिलेटिव्स, वो लोग आते हैं, मैच देखते हैं, तो अच्छा लगता है। एक प्रिंस, आपका भी एक खूबी जो है, एक डेथ बॉलिंग, जो आपके यॉर्कर सटीक जो बिल्कुल उसमें पड़ता है, पैर के पास पड़ता है, तो उसके बारे में आप बताएं, क्या प्रिपरेशन रहता है आपका और कैसे आप जाते हैं उस माइंडसेट के साथ? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पहले के जो कुछ ओवर होते हैं उसमें आपका इनिशियल जो स्टार्ट होता है मैच का वो अच्छा नहीं होता, मगर जिस हिसाब से आप फिनिश करते हैं वो चीज़ मैटर करती है एंड ऑफ द डे। तो उसमें आप क्या सोचते हैं और क्या आपका पूरा माइंडसेट रहता है उसमें?
माइंडसेट तो ऐसा कुछ नहीं, बस टीम के लिए 100% देना ही होता है, यही रहता है माइंडसेट। और इस चीज़ की मैं प्रैक्टिस करता हूँ, और जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं मेरे को ऐसे मुश्किल ओवर डालने की आदत है हमेशा से। क्या बताना है? हाँ थोड़ा सा बता दो जो टेनिस से ही यॉर्कर परफेक्ट हुई है। टेनिस डालना है। और वंश से भी थोड़ा सा पूछ लेते हैं, आपके जो छक्कों का राज रहा है, मतलब काफ़ी सारी आईपीएल फ्रेंचाइजी में भी हमने सुना चर्चा आपकी होनी शुरू हो गई है कि बड़ा अच्छा प्रॉमिसिंग, थोड़ा सा आप बताइए आपका। अभी आईपीएल फ्रेंचाइजीज का तो मुझे नहीं पता, मेरे तक कुछ नहीं पहुंचा है, बट हाँ डे वन से विजय सर ने काफ़ी ज़्यादा बैक किया था कि आई एम द वन प्लेयर हु कैन हिट सिक्सेस एनी टाइम आई वांट। तो उन्होंने स्टार्टिंग से मुझे बहुत बैक किया है कि आपके आसपास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं बीच ओवर में जाके स्लॉक करने की, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग।